direction, right? In the direction, we know that right north, south, east, and west. North, south, east, and west. If we want to just divide this again, so this will be northeast, southwest, and similarly southeast and नॉर्थ वेस्ट. ये एंगल भी जो होते हैं ये 45 डिग्री होते हैं एंड दिस कंप्लीट एंगल वी नो दैट दिस इज 90 डिग्री, राइट. सो ये डायरेक्शंस हमारे पास हैं एंड इन्हीं डायरेक्शन पर वी हैव टू वर्क. And you have to be very much like careful while you are getting something like this. If you are getting a triangle, right, especially right angle triangle, you know that this is 90 degree. If this is P, B, H, we know that P square plus B square is equal to H square. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग टर्मोलॉजी होंगे. नोट डाउन, फिर मैं दिखाऊं कि कैसे वी हैव टू यूज. Look, question on this. Person A walked 2 kilometers west of his house and then turned south, covering 4 kilometers. Finally, he moved 3 kilometers towards east and then again 1 kilometer west. How far is he from his initial position? Very simple question. Only you have to go with left, right, or north, south. Very good, Dhruv.
Very good, Atharva. Mansi, very good. Soham, very good. So one of the simplest question, इसमें tough question भी होते हैं, but this is one of the simplest question. Look how it's going. Starts his house. Suppose he's starting from point A. Now moves 2 kilometer west. 2 kilometer. Right. Again, 4 kilometer. Right. 4 kilometer south. Let this point is C. This is B. Then again moving 3 kilometer west. So this is 1 kilometer there. Right. यहाँ से मैं अगर मीट करवा दूं तो this will be 1 kilometer. Right. But this is E. Right. The direct question is there. Okay. Next on this, कुछ सिंपल क्वेश्चन पहले, फिर इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर आएंगे. A is 40 meter southwest of B. C is 40 meter southeast of B. Then C is in which direction with respect to A? Only you have to go with the direction. These are the one of the simplest question. So only the direction is required. Very good, Dhruv. Devanshu, very good. Soham, very good. Mansi, very good. A is 40 of southwest, so this would be the direction. And similarly, C is there. A C के direction ये है, right? So obviously C is east of A. Answer is east. How many of you got? अथर्वा ध्यान से, कुछ लोगों के गड़बड़ होंगे, ध्यान से. Okay, very good. Very good, Dhruv. Third, there are 4 towns: P, Q, R, and S. S की जगह T कर देता हूँ, town T. Right. Q is to the southwest of P. R is to the east of Q, and southeast of
P. And P is to the north of R in the line with QP. In which direction of P is T located? ध्यान से ना. Very good. Very good, everyone. बहुत सिंपल, लास्ट क्वेश्चन ही है. Q is southwest of P and R is east of Q. Q is southeast of P, right? T is north of R. यहाँ कहीं डायरेक्शन है T का. आई गेस नॉर्थ ईस्ट सभी का आना चाहिए. कितने लोग? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन. ओके ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं. एक क्वेश्चन आने का इसका हमेशा चांस रहता है एंड उसी के लिए ये आपको मैं करवा रहा हूं. इन द फिगर नॉर्थ ईस्ट O is the origin and this number is P, Q and midpoint is R. Right? R is the midpoint of both the numbers, right? P is 300 kilometer east of O. Q is 400 meter north of O. R is exactly midpoint of these two. Find distance between Q and R. बहुत ही सिंपल सी बात. Total distance by 2.
Done. बहुत सारे वेरिएशन इन क्वेश्चंस पे होंगे, वी हैव टू बी केयरफुल, राइट। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे इसमें हो जाते हैं एंड कुछ क्वेश्चन में यू हैव टू बी केयरफुल कैसे ये वर्क करेगा, राइट। Okay. Right, this last question this type. A starts from point Q and moves 25 meters south. Then he turns left and moves 30 meters. Then again turns right and moves 15 meters to reach point P, right? Distance PQ की आपको निकालनी है एंड डायरेक्शन, ये दो चीजें आपको निकालनी है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन।
ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर्स के ऑप्शन सबके अलग अलग आ रहे हैं, केयरफुल। डायरेक्शन भी आपको बताने हैं, एज वेल एज द डायरेक्शन। ओके, सो हाउ दिस विल गो, राइट, ध्यान से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये स्टार्ट फ्रॉम क्यू, क्यू से स्टार्ट हुआ, राइट, एट द पॉइंट पी, राइट। पहले ए तक गया होगा, देन बी तक, यहाँ पे, राइट। ये 25 था, ये भी 25 है, ये 30, राइट। अगर मैं ज्वाइन करूं, इसकी बात हो रही है, Q and P, राइट। ये 50 25 25 ये तो 50 हो रहे हैं, राइट। इट वाज 15 ना, ये 40 हो रहा है और ये 30 हो रहा है, राइट। तो एक्चुअल मेरे को जो निकालना है, दिस इज नथिंग बट दिस, राइट। ये पूरी डिस्टेंस मेरे पास 40 हो गई और ये मेरे पास 30 हो गई, तो दिस इज 50, राइट। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट। एक तो ये डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, एंड आई गेस एवरीवन इज गेटिंग दिस प्रॉपर्ली। दिक्कत, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, हाँ, क्वेश्चन में तो डिस्टेंस था। इसमें बेटा Q से P टोटल डिस्टेंस है ना। सर फिर हमें वो रूट ट्रेस करना पड़ेगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। रूट क्वेश्चन में क्या मैंने पूछा था तुम्हें, एक मिनट रुक जाओ, लैंग्वेज में देख लो क्वेश्चन का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q ना, P और Q दोनों के डिस्टेंस पूछ रहा बेटा, P से Q तक ना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पूछता, तो वो जो भी डिस्टेंस हुआ है वो फिर ऐड मुझे करना पड़ता, 25 फिर 30 फिर 15, वो सिंपल बात हो जाती ना। वो पूछेगा भी यही कि ये डायरेक्शन यू आर गेटिंग दिस और नॉट ना, ओके। सो एक ये डायरेक्शन हमारे पास रहता है, या डायरेक्शन सेंस होते हैं, दैट यू हैव टू बी वेरी, मतलब ये ऐसा है जगह जहां पर आपको स्कोर होने ही चाहिए, राइट। ये स्कोरिंग का एक बहुत बहुत अच्छा जगह होता है, एंड सिंपल थिंग, राइट। एंड डायरेक्शन और दोनों चीजें एक साथ में मिल जाते हैं हमारे पास। सो इसी क्वेश्चन में या इसी में जो ABCD करते हुए हमारे पास, इसी को थोड़ा सा अगर हम लोग अच्छा क्वेश्चन कर देते हैं तो वो पजल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। पजल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड पजल के बहुत डिफरेंट वैरायटी होते हैं क्वेश्चंस के,
बहुत टफ वाले तो नहीं, मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में हम लोग कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चन उस तरह के देखने का, राइट। सो क्लासिफिकेशन हमारे पास रहे या डिस्ट्रीब्यूशन रहे या डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन दोनों एक साथ में वर्क करता हो, किस तरह से क्वेश्चंस ये देखना, राइट। कंसेप्चुअली यू हैव टू बी स्ट्रांग, उसके लिए एक राइट पजल टेस्ट। राइट, फर्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन यू हैव टू राइट pick the right answer or go for the right answers, right? A and B and E are good dramatist and computer science, right? CS में लिख रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए। सेकंड, A and B are good at computer science and physics. Third, A, D and C. A, D and C are good in physics and mathematics. Fourth, C and A are good in physics and mathematics. A, D, C are good in physics and history. इसे थोड़ा सा करेक्ट कर देना, हिस्ट्री भी है भाई, फिजिक्स एंड मैथ्स। फिफ्थ, D and E are good in history and dramatist, राइट। इतने इंफॉर्मेशन मैंने दे लिए, राइट। अब इन इंफॉर्मेशन को पहले आप गैदर करें, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके बाद मैं इस पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, राइट। सो मैक्सिमम 3 मिनट यू हैव, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, राइट। 3 मिनट में इसके इंफॉर्मेशन गैदर करें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। सर ये हम लिख के रखे चलेगा ना? हाँ हाँ, लिख के रखें।
See, drama में how many people are there? So A is not in drama, right? A is not in drama, but computer science, right? From first statement, B and E are good in drama and computer science. B and E are, right? Drama and computer science, right? Similarly, go for, so directly I'm writing this, right? So for C, cross, cross, right, right, and right. This is very important, and this one is one of the best method while solving any puzzle question, right? Ye, if you are solving the question by this method, na 100% you'll get the answer, and correct answer आने में कोई रोक नहीं सकता बेटा. So please, if questions are there and you have to solve for any puzzle type of question, make this statistical data in that form so we can read the data accurately. Otherwise, हर एक क्वेश्चन को पढ़ने में and क्वेश्चन के डिमांड को देखने में ना, that will be always difficult, right? So now coming to I guess this graph, everyone is understanding this graph, right? ये किस तरह से work कर रहा है? Now, first question, right? Who is good in physics, history, and drama test? Who is good in physics, history, and drama? Physics, history, and drama. Right? Answer is D. Very good, Dhruv, Mansi, very good. Bahut अच्छे. Who is good in physics, history, and mathematics, but not in computer science? ये अपना बंदा नहीं है. Not in computer science, right? Who is good in computer science, history, and drama? Very good. So this is easiest way to get the answer ना. क्वेश्चंस जब भी रहें, अगर डेटा आपके पास है, हाँ लास्ट क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहे हैं, जरार एक बार फिर चेक करेगा बेटा. E is good in computer science, history, and drama, right? E, not D. राइट. तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जो रेंज होंगे इसमें ना, एक तो रेंज ये है जिस समय लाइक हमें डेटा बनाने हैं और वो डेटा को पिक करना है और डेटा को रीड करना है, राइट? तो एक ये पूरे के पूरे डेटा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कुछ यही रहेगा, राइट? इसी में दूसरे क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो क्वेश्चन होता है जब हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की बात होती है. सीटिंग अरेंजमेंट के दो क्वेश्चन बनते हैं, दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं. एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट होता है और एक सर्कुलर होता है, राइट? सर्कुलर में कभी कभी ये भी दे दिया जाएगा कौन किसको फेस कर रहा है, और लीनियर में जो हमारे पास है वो लीनियर में लेफ्ट टू राइट पे वो वर्किंग रहती है, राइट? दोनों तरह से क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं एंड ऑब्वियसली सॉल्व करना फिर इसी तरीके से है, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना. ये डायरेक्शन भी हम लोगों को यहाँ पर देखना है, साथ ही साथ सॉल्व भी हमें करना है, तो दोनों को साथ में देखते हुए, राइट? सो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्लीज सर्कुलर ही रखता हूँ, राइट? फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circle and facing center. No? Facing center. Second, G is second
to the left of C, who is to the immediate left of F. Third, A is third to the left of E. Fourth, B is between D and E. राइट, क्वेश्चन थोड़ी देर में, उसके पहले ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, पहले इंफॉर्मेशन पर थोड़ा प्ले कर लो, देन विल गो फॉर राइट, इतने डेटा हैं, राइट, इन्हीं डेटा पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस ना, जल्दी से सर्कल बना लो, सर्कल में कहाँ कहाँ कौन सिटिंग अरेंजमेंट है वो निकाल लो, इररिस्पेक्टिव क्या क्वेश्चंस जा रहे हैं, राइट। अपने आप हर एक क्वेश्चन आपके हाथ पे रहेगा विदाउट एनी फील, राइट, यू विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चंस।
लेट्स स्टार्ट। आई गेस हो गया होगा सभी का, राइट। इस बार मैं थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूं, मैं क्वेश्चंस पर आऊंगा, उसके बाद सीधा बात करेंगे ना। फर्स्ट, विच वन इज फॉल्स ना, फॉल्स आपको बताने इसमें जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, विच वन इज फॉल्स। फर्स्ट, A is fourth to the right of E, राइट। आप लोग ऐसा करें, सभी लोग राइट डाउन द आंसर इन चैट। आंसर चैट में ऐसे लिखें, जहां भी आप स्टार्ट कर रहे हो एक सर्कुलर, जो भी जिस तरह की भी सिटिंग है वो सिटिंग को लाइक ABDG जो भी आपको लगता है वो एक सिटिंग को इस तरीके से आप लिख दें जो भी सर्कल में रहेगा, राइट। राइट डाउन इन चैट एवरीवन। नेक्स्ट 30 seconds, राइट डाउन इन चैट। ओके देवांशु, स्टार्ट फ्रॉम ए, एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट करके लिखें। सभी लोग ए से स्टार्ट करके लिखो, A2 जो भी जा रहा है लास्ट। So, do we have to go clockwise or anti-clockwise? क्लॉकवाइज, Okay, sir. एज यू विश, नो प्रॉब्लम ना, दोनों में से वो दिख जाएगा मेरे को, वो पता चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, लेट्स सी क्या क्या पोजिशनिंग है। टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 7, राइट। 7 लोगों को बैठाने हैं मेरे को सर्कल पे। सब, राइट। फर्स्ट थिंग इट्स गिवन देयर, G is second to the left of C, यहां जूम करूं, C and immediate left of F, राइट। B is between D and E, तो B तो यहीं कहीं होगा, B is between D and E। अब D और E का पोजीशन अभी तो मुझे नहीं मालूम क्या होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली A का पोजीशन कुछ यही बचा मेरे पास, बहुत सिंपल हो गया, राइट। आगे देखता हूं, बट एक और दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, A is third to the left of E, A is third to the left of E, राइट। इससे ये कंफर्म हुआ कि ये हम लोग नहीं लिखे, जो हमने ये लिखा हुआ है, राइट। ये पोजिशनिंग हमारी करेक्ट पोजिशनिंग है, राइट। ACFEBDG या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी आप ले रहे हो। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट राइट? प्लीज राइट डाउन यस इन चैट। Very good, Dhruv.
very good. Devanshu, very good. Mansi, very good. ये सीटिंग अरेंजमेंट में ना दोनों तरह के, मैंने कहा कि दोनों सीटिंग अरेंजमेंट आपके लिए पॉसिबल होंगे। एक सर्कुलर के लिए भी काम कर सकता है और मे बी आपके पास दूसरा कुछ इस तरह से वर्क कर रहा, राइट। उतने टफ नहीं जाएंगे, नहीं तो यहाँ डिस्टेंस वगैरह भी बात हो जाते हैं, डिस्टेंस की भी बातें हो जाती है जो यहाँ के लिए पॉसिबल नहीं होना चाहिए, राइट। एंड इसमें जो ग्रेटर देन लेस देन, ये बेटर और लाइक वर्स्ट वाले कंडीशन को या यंगर और ओल्डर वाले कंडीशन भी क्वेश्चंस में फ्रेम होते हैं, राइट। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं जिससे क्लियर करना मेरे को आसान रहेगा। फर्स्ट, x is older than L. M and N are equal in age. Third, Z is, ये सबसे सिंपल होता है ना, Z is the youngest one. Youngest one. Fourth, Y is younger than N. Fifth, Y is older to younger में आपको पूरे के पूरे ये लिखने हैं, राइट। older than X, राइट। older to younger, वेट भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, बहुत सारे वैरायटी हो सकते हैं इसमें, उसको एक साथ ही मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। राइट डाउन आंसर। एक्स एम को ओल्डर टू यंगर के रेंज पे यू हैव टू राइट डाउन। Sir, what you have to write? Older to younger में age wise you have to write down the sequence of this. सर पर एम और एन की है ना एज इक्वल है, तो हम उन्हें कैसे लिखे सीक्वेंस में उन दोनों को? लिखेंगे बेटा लाइक m is equal to n greater than y greater than x greater than l greater than z, और mn और nm, राइट, y x l z, राइट। ये दोनों इक्वल है, mn लिखें या nm लिखें दोनों सेम रहेगी। ओके ओके, सो ये पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, बट याद होगा मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, सबसे अधिक क्वेश्चन में आपको सबसे अधिक परेशान भी करेगा और सबसे अधिक रिक्वायरमेंट भी होगी
वो रिक्वायरमेंट होती है जब हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते हैं और नंबर्स पे पजल की बात करते हैं। इसमें इतनी वैरायटी होती है, जितने क्वेश्चंस हम करते जाएंगे उतनी वैरायटी हमें मिलती जाएगी, और वो एंडलेस है, राइट। वो काम चलता जाएगा, हमेशा बढ़ता जाएगा। बट जितने अधिक हम लोग एग्जाम के पहले क्वेश्चंस कर लेंगे, उतने हम लोगों को उतना सिंपल हमारे लिए रहेगा ना। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ फ्यू क्वेश्चंस ना। सो ध्यान से, फर्स्ट, फोर्टीन, 10, 15, 8, 8, 8, 9, 8, 5, 6, 6, 11, 8, 4, 13, 5, 7, 4, 3, 5, 9, 8, 4, 3, 8, 4, 9, 3। 3 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, राइट। ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। या टेक योर टाइम, 4 minutes you have। Very good, Dhruv.
Devanshu, very good. Only you have to see the pattern, right? 2 more minutes. Okay, let's start. Start करें. Attempt हो गया सबकी. देखो, first question, right? 10 minus 8 is 2. 15 minus 8 is 7 into 2 is 14. 2 into 4 is 8. 4 into 3 is 12. 3, 6. Right? First का answer 6. Right? 7 into 4, 28. 5 into 3, 15. 27, 32. 24, 36. 12. Right? This 9 and 4. 27 by 3 is 9. 16 by 4 is 4. This is 6 plus 5 is 11. 3 plus 9 is 12. 6, 12, 12. 11 minus 8 is 3. And 6 minus 4 is 2. I guess it's coming 6. क्या लॉजिक लगाया आपने थ्रू? Okay, okay, no problem, no problem. Sure. Next. सर एक बार थर्ड वाला वापस बताओगे? Third one. 27 by 3 is 9. 16 by 4 is 4. 9 plus 4 is 13. 9 plus 4, 13. 42 by 7 is 6. 65 by 13 is 5. So 6 plus 5, 6 plus 5 will be 11. So 27 by 9 is 3. 72 by 8 is 9. 9 plus 3 is 12. Okay? ओके सर.
right? First. तीनों एक साथ दिखाऊंगा, जस्ट वेट ना। Okay, go ahead. थोड़े सिंपल हैं, ध्यान से।
आई गेस सिंपल वन, जल्दी जल्दी देख लें। First one, right? So adding all the numbers, right? So you are getting this plus this plus this minus this is something 45. This 6 plus 5, 30, 3, 3, 9, 39, and 12 and 25 is 37. 48 plus 15, right? 27 plus 14, 40 plus 42, 82. How many of you got all correct? Please write down yes. Areva, very good. Dhruv, Mansi, Bhagyasri, very good. Adinath, Karagya, Tharv, Devanshu, Zarar, Ibrahim, Siddharth. Simple question. राइट, ये वेरिएशन काफ़ी अधिक मिलेंगे एंड इन वेरिएशन पर हम वर्क भी बहुत करेंगे। एज आई सेड कि जितने भी हमारे क्लासेस होंगी उसमें ये हमारे साथ में हमेशा एक ये रखेंगे हम लोग कि इनके क्वेश्चंस को साथ में हम जरूर करते जाएं, राइट। धीरे धीरे करते करते परफेक्शन आएंगे। जितने डिफरेंट वैरायटी के नंबर्स हम करते जाएंगे उतने हमारे लिए आसान होता जाएगा वर्किंग देखना, राइट। एंड इसका कोई सिंपल अगर मैं बोलूँ तो कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता, राइट। हमेशा ये वर्क करने के लिए बहुत ही डिफरेंट वैरायटी जा सकती है, राइट। मैंने इस बार ये फिगर को ही चेंज कर दिया, राइट। 25, 17, 6, 38, 18, 8, 89, 16, and this. राइट, तो एक तो ये दिया मैंने, सेकंड इज कमिंग एज ये थी।
Very good. Dhruv, very good. Adinath, very good. वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। इस बार तो सबका आंसर आ गया लगता है। एवरीवन डूइंग वेरी गुड। फर्स्ट का तो आंसर आई गेस सभी का सही है, दिख भी रहा है डायरेक्टली। 15 कौन एक्सप्लेन करेगा 15 कैसे आया? विल एक्सप्लेन दिस। यस आदि। सर जो लेफ्ट और राइट के नंबर है उनको ऐड करके अगर 7 से डिवाइड किया तो बॉटम वाला नंबर आता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। सेकंड वाले को देखो, विल एक्सप्लेन दिस। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन में एक हो सकता है। 3 4 5 5 12 13, then third number, right? Zarar, yes Zarar। सर पाइथागोरस थ्योरम से ऊपर के दो नंबर्स लेने का, फिर बाद में उससे है ना नीचे वाला नंबर ढूंढने का। वेरी गुड। p square plus b square is equal to h square, directly it will go right। Third, who is there, who is going to solve this? The third one, Devanshu। सर बॉटम नंबर को आधा करके 12 से मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड। तो यहाँ पे 18 को 9 करके 9 से मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड। यहाँ पे 16 होगा क्योंकि 16 का 8 से मल्टीप्लाई होगा 11। वेरी गुड, राइट। सो वेरिएशन बहुत सारे होंगे, बट यही वेरिएशन हम लोगों को बार बार करते जाने हैं। इतने तरीके से डिफरेंट वैरायटी पे करने हैं कि एक समय आ जाए जिसमें इस तरह की कोई भी क्वेश्चन हो हमारे लिए सिंपल जा रहा हो। ओके, राइट। हाँ, लेकिन छोटे छोटे जो 9th के और 10th के छोटे छोटे टेस्ट ले रहा हूँ उनको थोड़ा सा ध्यान से करते जाना, वो रिवीजन पर्पस के लिए है। बट नेक्स्ट वीक से आप लोग का NTSC के लिए जो फुल फेज टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सो एवरीवन रेडी फॉर दैट।
ना। फुल टेस्ट जो है एनटीएससी के लिए वो नेक्स्ट वीक से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जितने रिवीजन छोटे छोटे करवाने थे वो मैं करवाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में थोड़े पजल के रेंज को हम लोग और बढ़ाएंगे, राइट, एंड थोड़े अच्छे पजल के क्वेश्चन हम लोग और भी कर सकते हैं जो नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट। ओके, सो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।